नेता हैं जिन्होंने फुटपाथ पर बैठकर 1 घंटे से अधिक प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर वार्तालाप किया, उसका डेफर्ड लाइव हम कल सुबह रिलीज करेंगे 9 बजे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप उसको यूटिलाइज करेंगे तो इस देश के करोड़ों मजदूरों की समस्या हाईलाइट हो पाएगी। प्रशांत जी, आर यू रेडी? Just starting, give us just 30 seconds. Please mute everyone. लोगों ने अनम्यूट कर दिया सर, मैं सबको अनम्यूट हूँ। ये स्टार्टिंग 30 सेकंड सर। प्रशांत सर को क्यों करिएगा? सर आप लाइव हैं, यू कैन स्टार्ट। प्रशांत जी, कैन आई स्टार्ट? यस सर, वी कैन स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, 22 राजनीतिक दलों की एक संयुक्त बैठक श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में आज जूम से वर्चुअल हुई। देश में जो कोरोना पेंडेमिक फैला है और जिस प्रकार से कोरोना महामारी के साथ साथ आर्थिक महामारी के शिकार करोड़ों लोग हुए हैं, देश की अर्थव्यवस्था जिस तरह से छिन्न भिन्न हो गई है, जिस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को सरकार ने अपने हाल पर बेहाल छोड़ दिया है, जिस प्रकार से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग और वहां काम कर रहे 11 करोड़ लोगों के लिए कोई मदद नहीं, जिस प्रकार से देश का अन्नदाता किसान उसे अपने हाल पर छोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं दिया जा रहा, और जिस प्रकार से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर एक तरह से ग्रहण लगा दिया गया है और सरकार कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी न समझ पा रही और न उसका क्रियान्वयन कर रही, इनका और बहुत सारे अन्य मुद्दों की आज 22 राजनीतिक दलों की इस बैठक में चर्चा हुई। और उस व्यापक चर्चा जो लगभग 4 घंटे चली, जिसकी शुरुआत कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने की, कई मुख्यमंत्री गण उसके अंदर उन्होंने अपने अपने विचार रखे। उदाहरण के तौर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी, हेमंत सोरेन जी, तो कई हमारे जो मित्र राजनीतिक दल हैं उनके मुख्यमंत्री गण, पार्टी के अध्यक्ष गण भी पूरे देश से उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। और लगभग 4 घंटे से अधिक चली इस चर्चा के बाद कुछ निष्कर्ष 22 राजनीतिक दलों ने आगे की रणनीति के बारे में निकाले और एक बयान तैयार किया। मैं उस बयान को सबसे पहले आपके समक्ष पढ़कर बताऊंगा और फिर हम आपके सवालों के जवाब लेंगे। Statement of like-minded political parties. 22 like-minded parties met today to exchange views on the extraordinary situation in the country arising out of the COVID-19 pandemic. The economy has collapsed. All sections of the society face acute distress. Livelihoods have been destroyed. Lives have been lost. The like-minded parties applaud the heroic efforts of all public health personnel, particularly doctors, nurses, paramedics, as also police and security forces personnel, safai karamcharis, and those maintaining essential services like water, power, etc. in these challenging times across the country. They have shown extraordinary courage and dedication. We are humbled by their devotion to duty at a time of grave peril to their own lives. Acutely conscious of the magnitude of this crisis, the like-minded parties have, as always, extended their full cooperation to the union government. But sadly, we have to point out that the union government has failed in discharging its responsibility
responsibilities in a timely, effective, and sensitive manner. Grand announcements have been made, but they do nothing meaningful to alleviate the sufferings of people and address the pressing concerns of farmers and farm labor, of migrant and other workers, of trade and commerce, MSMEs and industry. In fact, Union government has unabashedly usurped powers vested in the states, undermining the constitutionally guaranteed federal democracy. The like-minded parties believe that this is neither the time for government at the center to indulge in showmanship nor one-upmanship. This is the time for a gigantic collective endeavor. This is what the people of India need, and this is what the people of India demand. It is important that Government of India reaches out and engages in a dialogue with all political parties in a systematic manner. Listen seriously to the suggestions that we have to make. Activate parliamentary institutions like standing committees and be genuine in helping the states financially and otherwise. Opposition parties represent over 60% of India's people. We therefore appeal to the Union government to listen and consider the following 11 demands. Number 1, direct cash transfer of rupees 7,500 per month to all families outside the income tax bracket for 6 months. Rupees 10,000 to be paid immediately, with the balance being paid equally across the remaining 5 months. Number 2, free distribution of 10 kg food grains to all needy individuals each month for the next 6 months. Increase the number of MG Narega work days to 200 and provide the necessary budgetary support. Number 3, free transportation for all migrant workers to their native places. Also make immediate and reliable arrangements to rescue all Indian students and other citizens stranded overseas. Number 4, provide accurate and relevant information on COVID-19 events and goals vis-a-vis testing, infrastructure, and containing spread. Number 5, reverse all unilateral policy decisions, particularly the annulment of labor laws. Number 6, procure immediately the Rabi harvest at MSP and provide assistance for the produce to reach the market. The government must also provide seeds, fertilizers, and other inputs to the farmers to help prepare for the Kharif crop. Number 7, release substantial funds to the state governments who are in the front line of combating the pandemic. Number 8, communicate in clear terms the central government's exit strategy from the lockdown, if any. Number 9, restore parliamentary functioning and oversight with immediate effect. Number 10, present a clear and meaningful economic strategy focused on revival and poverty alleviation instead of propaganda. The rupees 20 lakh crore package and its contents mislead the people of India. We demand that government present a revised and comprehensive package that will be a true fiscal stimulus in order to stimulate demand in the economy. And number 11,
consult state governments while allowing international or domestic flights. दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न लूं, मैं केवल ये कहूंगा कि काफी मंत्रणा के बाद 22 राजनीतिक दलों, उनके अध्यक्षों, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों ने भारत सरकार से 11 पॉइंट डिमांड चार्टर मांगा है। ये नहीं भूलना चाहिए मोदी सरकार को कि ये विपक्षी दल 60 से 70% भारत की आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि और सरकारें हैं। और हमारी 11 मांगे प्रमुख तौर से हैं। मैं बहुत संक्षिप्त में हिंदी में कहूंगा। जो परिवार इनकम टैक्स की ब्रैकेट से बाहर हैं, उन सब परिवारों को 7500 रुपया प्रति परिवार 6 माह के लिए दिए जाएं। 10,000 रुपया फौरन दिया जाए और बाकी का पैसा अगले 5 महीनों की बराबर किस्तें बांटकर दे दिया जाए। दूसरा, हर जरूरतमंद व्यक्ति को 6 महीने तक 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाए। इसके साथ साथ महात्मा गांधी नरेगा के काम करने वाले लोगों की संख्या 200 कर दी जाए। वह महात्मा गांधी नरेगा स्कीम का इस बारे जरूरी तौर से बजट बढ़ा दिया जाए। नंबर 3, हमारे राष्ट्र निर्माताओं मजदूरों की निःशुल्क घर वापसी का केंद्र सरकार फौरी तौर से इंतजाम करे। इसके साथ साथ विदेशों में फंसे हिंदुस्तान के छात्राओं और हिंदुस्तान के नागरिकों को फौरन वापस लाने का संपूर्ण इंतजाम भारत सरकार द्वारा किया जाए। नंबर 5, अनाप शनाप और तानाशाही तरीके से मजदूरों के संरक्षण वाले लेबर लॉस को जो खत्म किया जा रहा है, इस पूरी प्रक्रिया पर लगाम लगाएं और जहां जहां इस प्रकार के मजदूर विरोधी कानून पारित कर दिए गए हैं, इन 60 दिनों में उन्हें वापस लिया जाए। नंबर 6, रबी की फसल, खास तौर से गेहूं, सरसों इत्यादि, इसकी पूरी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान की हो और जहां कम मूल्य मिला हो वहां न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए। इसके साथ साथ फसल को बाजार या मंडी तक पहुंचने का पूरा इंतजाम सुनिश्चित किया जाए। भारत सरकार खरीफ की फसल के लिए कीटनाशक दवाइयां, बीज इत्यादि उपलब्ध करने का पूरा इंतजाम करे। नंबर 7, कोरोना से लड़ाई आखिर में जिला और प्रांतीय स्तर पर लड़ी जा रही है। इसलिए केंद्रीय सरकार प्रांतीय सरकारों को विशेष आर्थिक राहत पैकेज दे ताकि कोरोना से यह जंग जीती जा सके। नंबर 8, साफ शब्दों में केंद्रीय सरकार बताए कि लॉकडाउन से बाहर जाने की कोई नीति उनके पास है या नहीं और लॉकडाउन से बाहर निकलने की वो नीति क्या है। नंबर 9, संसद इस देश का सबसे बड़ा मंदिर है। संसद सरकार पर अंकुश भी लगा सकती है और नीतिगत नियंत्रण भी। संसद और संसदीय समितियों की कार्यवाही को, सरकार पर उनकी देखरेख को फौरी तौर से रिस्टोर किया जाए। नंबर 10, गरीबी से लड़ने और आर्थिक संकट से निपटने के लिए एक निर्णायक नीति की घोषणा सरकार करे। 20 लाख करोड़ का पैकेज केवल एक मायाजाल और भ्रम साबित हुआ है। इसलिए 22 राजनीतिक दल मांग करते हैं कि भारत सरकार एक सार्थक
निर्णायक मदद वाला विशेष राहत पैकेज घोषित करे ताकि हमारी अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ सके और उद्योग धंधा व्यापार दोबारा से नए ढर्रे पर चल पाए। और आखिरी, अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय हवाई जहाज सेवा शुरू करते हुए किसी प्रदेश की सरकार से मंत्रणा अवश्य कर ली जाए। ये हमारी 11 मांगे हैं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो साथियों का स्वागत है। पहला रिक्वेस्ट मोहित दुबे जी का है, न्यूज नेशन से। मोहित जी सवाल पूछिए। रणदीप जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि 22 दलों ने आज विपक्षी दलों की बैठक में भाग लिया। लगातार आप लोग ये मांग करते रहे हैं कि जिस रूप में आप लोगों को देश को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए थी, जिस रूप में केंद्र सरकार को बजट देनी चाहिए थी, उस रूप में अब तक बजट मिल नहीं पाया है। प्रवासी मजदूर अभी भी रास्तों पे आपको दिखाई देंगे, पैदल चल रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए इस बैठक में क्या बातचीत हुई है? दूसरा एक और सवाल है कि कई ऐसे दल हैं जो, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें या दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात कर लें, वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। क्या आपकी इन सारी मांगों को लेकर जो आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं सड़क पे, ये दोनों ही दल आप लोगों से सहमत नहीं है? आदरणीय मित्र, प्रवासी मजदूरों के साथ केंद्रीय सरकार की अनदेखी, घोर अन्याय, अमानवीय व असंवेदनशील व्यवहार पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा। ऐसा लगता है कि दिल्ली की सत्ता में बैठे सत्तासीन हुक्मरानों को इस देश के लाखों करोड़ों मजदूरों के ना पांव के फफोले नजर आते, ना उन्हें सैकड़ों हजारों किलोमीटर अपने परिवार के साथ नंगे पांव चलकर, बगैर भोजन बगैर दवाई के चलकर, भूखे प्यासे चलकर, हर प्रकार की विषमता और मुश्किल का सामना करके अपने घर वापस जा रहे राष्ट्र निर्माता मजदूर की तकलीफ भी नजर नहीं आती। और इसीलिए 7,500 रुपया प्रति परिवार 6 महीने के लिए, हर व्यक्ति के लिए 6 महीने के लिए 10 किलो मुफ्त राशन और हर प्रवासी मजदूर की निःशुल्क घर वापसी की मांग 22 राजनीतिक दलों ने गहन मंत्रणा के बाद रखी। जहां तक आपने समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या किसी और राजनीतिक दल के और इशारा किया, आपका सवाल सार्थक है, पर वो शामिल क्यों नहीं हुए, इसका जवाब आपको उन्हें पूछना चाहिए कि क्या वो इन मांगों से सहमत नहीं? क्या वो इस देश के मजदूर, किसान, लघु सूक्ष्म और छोटे उद्योग, इस देश का छोटा छोटा काम करने वाला दुकानदार, इस देश का गरीब, इस देश का कामगार, इस देश का श्रमिक, इस आवाज में सबको आवाज अपनी मिलानी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। पर वो अपनी आवाज क्यों नहीं मिला रहे, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। ये सवाल आपको उनके मुखियाओं से पूछना पड़ेगा। धन्यवाद। मौसमी भ्रम आज तक। सर आवाज मिल रही है आपको? प्रणाम मौसमी जी। जी सर। सर नमस्कार। मैं ये बोल रही थी आपसे कि आपने जो 11 डिमांड्स रखी हैं, 11 मांगे रखी हैं, आप आरोप लगा रहे हैं सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रहे हैं। हमारा ये कहना है कि सवाल है कि इसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे और महाराष्ट्र और बंगाल की रिपोर्ट कार्ड या फिर झारखंड का परफॉर्मेंस किसी से छुपा नहीं है। तो लगातार क्या कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दल इस पर सियासत नहीं कर रहे हैं? आप आम आदमी पार्टी को न्योता नहीं देते हैं, आप बसपा और सपा को न्योता देते हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी की मंशा सियासत करने की नहीं है इस पूरे मसले पर, जब एकजुट होना चाहिए इस पूरे मामले में? बसपा सपा आते नहीं है। 22 राजनीतिक दलों ने एक स्वर में कहा, और वो बयान मैंने पढ़कर सुनाया कि आज दिन राजनीति का नहीं, पर कोरोना से लड़ाई और कोरोना के आर्थिक संकट से लड़ाई प्रांतों, जिलों, तहसीलों, गांवों, कस्बों और शहरों में लड़ी जाएगी।
पर अगर आप प्रांतीय सरकारों को कमजोर कर देंगे, अगर आप प्रांतीय सरकारों को आर्थिक मदद नहीं देंगे, अगर आप प्रांतीय सरकारों को पैसों के मामले में पूरी तरह से वंचित कर देंगे, तो क्या ये लड़ाई स्वास्थ्य और आर्थिक संकट की कमजोर नहीं पड़ जाएगी? आपने महाराष्ट्र का उदाहरण दिया। क्या आप ये पूछेंगे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि 16,000 करोड़ रुपया जो महाराष्ट्र की जनता का अधिकार है जीएसटी का, आज तक केंद्रीय सरकार ने नहीं दिया? आपके चैनल आज तक ने दिखाया कि किस प्रकार से पिछले 3 महीने से जीएसटी की एक टूटी कोड़ी भी पूरे देश में एक भी राज्य को नहीं दी गई। क्या जीएसटी राज्यों का अपना पैसा नहीं? क्या ये उनका अधिकार नहीं? क्या उस पैसे के लिए जो आज गरीबों के काम आता, उनके प्रांतों में, और कोरोना से लड़ाई के काम आता, उसके लिए प्रांतों को दर दर की ठोकरें खिलाना उचित है? इसके साथ साथ केंद्र सरकार के पास आज पैसा है। केंद्र सरकार चाहे तो और पैसा ले सकती है। $1.5 बिलियन का लोन वर्ल्ड बैंक से और $1 बिलियन का लोन केंद्र सरकार ब्रिक्स बैंक से ले चुकी। 5 लाख करोड़ रुपया देश के बैंकों से केंद्र सरकार लोन ले चुकी। पीएम केयर्स फंड के अंदर लगभग कहते हैं 20,000 करोड़ रुपया आया है। ये सारा पैसा कोरोना से लड़ाई लड़ रहे प्रांतों को क्यों नहीं दे रहे? और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो ये राजनीति नहीं, ये राष्ट्रहित का विरोध होगा, मैं इसे ये कहूंगा। धन्यवाद। संजय मिश्रा फ्रॉम दैनिक जागरण। संजय जी पूछिए। नमस्कार संजय जी। अनम्यूट करिए संजय जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, रणदीप जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। नमस्कार। जो 22 दलों ने 11 जो चार्टर डिमांड तय की और सरकार के सामने रखा है, इस पे सरकार पे आपने मांगे तो रख दी है, पर सरकार उस मांगों को स्वीकार करती है नहीं करती है? इसको लेके आगे की रणनीति को कोई चॉकआउट प्लान किया गया है कि सरकार पे दबाव बनाने के लिए आगे की, ताकि ये आपके मांगे मानी जाए? आप सब पार्टियां मिलके कैसे काम करेंगी? देखिए, 70% आबादी का लगभग प्रतिनिधित्व ये 22 राजनीतिक दल करते हैं। ऐसे में अगर देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार इन 70% देश के लोगों की बात नहीं सुनेगी तो देश का प्रजातंत्र कैसे चल पाएगा मेरे मित्र? इसलिए ये इन 22 राजनीतिक दलों की मांग नहीं, ये इस देश के आम गरीब जनता की मांग है। इस देश की लगभग 60 से 70% आबादी की मांग है। और प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकारों को जनता ही उनकी सबसे बड़ी देवता है और नर सेवा ही नारायण सेवा है। ये तो खुद आदरणीय मोदी जी कहते रहे हैं। जब इस देश के 70% लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 22 राजनीतिक दल सामने आकर इस देश की जनता की मांग सामने रख रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं मान रही? और अगर केंद्र सरकार इस बात को नहीं सुनेगी तो ये साबित हो जाएगा कि वो इस देश की जनता की अनदेखी कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। रमन जी हैं न्यूज़ 24 से। रमन जी पूछे सवाल। प्रणाम रमन जी। अनम्यूट करिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? जी प्रणाम रमन जी, आ रही है। प्रणाम 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 सर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि संसदीय समिति और संसद की कार्यवाही शुरू करने के बारे में जो 22 दलों के रिप्रेजेंटेटिव थे, मुखिया थे, उनकी राय थी, लेकिन आपको याद होगा कि जब कोरोना शुरुआती दौर में संसद सत्र खत्म नहीं किया गया, काफी देर से खत्म किया गया, तो आप लोगों ने ही आरोप लगाया था कि मध्य प्रदेश के चलते, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चलते यहाँ पे संसद का सत्र चलाया गया। क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है कि जो कोरोना के लगातार केसेस आ रहे हैं उसके बावजूद भी संसदीय समिति या संसद का सत्र शुरू कर देना चाहिए?
कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मुझे लगता है शायद कनेक्शन। सर का कनेक्शन लगता है कट गया। ड्रॉप हो चुके हैं सर, हम वेट कर रहे हैं। हाँ, एक बार फिर हम लोग वेट कर लेते हैं, एक बार कोशिश कर लेते हैं। हाँ, ओके। हाँ, अनम्यूट कर। ओके, प्रशांत अनम्यूट कर सर को। रणदीप सर को अनम्यूट करिए। हाँ, ओके सर, अनम्यूट करिए सर को। मैडम एक इसके साथ मेरा भी सवाल है, संजीव है। हाँ, एक मिनट। आपसे रमन जी सवाल पूछ रहे सर, आपने सवाल सुन लिया था? जी हाँ रमन जी, आई एम सॉरी, बीच में वो कनेक्शन टूट गया था। प्लीज दोबारा अपना सवाल पूछिए। कि जो संसदीय समिति और संसद के बारे में आज की बैठक में जो विचार रखा गया, क्या हम लोग माने कि संसदीय समिति और संसद को फिर से शुरू करने के लिए एक आम राय उभर कर सामने आई थी? क्योंकि ये मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि जब कोरोना की शुरुआत हुई थी उस वक्त संसद का सत्र काफी देर तक चलाए जाने को लेकर आप लोगों ने और कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाया था सरकार की मंशा के ऊपर कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार गिराने को लेकर ही ऐसा किया गया। क्या आपको लगता है कि अब कोरोना का कोई संकट संसद के ऊपर नहीं है? देश की संसद देश का सबसे बड़ी प्रभुत्व प्रजातंत्र के अंदर जनता की नुमाइंदगी की सबसे बड़ी बॉडी है। आज ऐसा लगता है सारी संसदीय समितियां जो सरकार की नीतिगत और अलग अलग विभागों के ऊपर अपनी पैनी नजर भी रखते हैं और ये संसदीय समितियां अपनी राय भी रखती हैं। इन संसदीय समितियों की अब लगभग 3 महीने से कोई बैठक नहीं हो रही। कितने ऐसे देश हैं जहां कोरोना संकट के बावजूद कई संसद उनकी वर्चुअल बैठक हुई हैं, क्योंकि सरकार निरंकुश नहीं रह सकती, सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती और उसका रास्ता सरकारों पर प्रजातांत्रिक तरीके से अंकुश लगाने, लगाम कसने, नीतियों की जांच करने, कानून की जांच करने, उसकी सबसे बड़ी बॉडी एक ही है, वो है देश की संसद और हमारी संसदीय समितियां। इसलिए आप ये देखेंगे कि हमारी एक मांग ये भी है कि संसद का प्रभुत्व और संसदीय समितियों की ओवरसाइट, इन दोनों को रिस्टोर किया जाए। धन्यवाद। हाँ, जयेंद्र एबीपी से पूछना चाहते हैं। जयेंद्र, पूछिए सवाल। नमस्कार जयेंद्र जी। जी सर, नमस्ते सर। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि कुल कितनी पार्टियों को आमंत्रित किया गया था और क्या उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा भी। मौसमी जी ने ये पूछा था, इस पे बहुत क्लियर आपने नहीं बताया था। और दूसरा ये सवाल है कि जैसे कांग्रेस ने अपनी तरफ से कई सारी चीजें ऑफर की सरकार को, चाहे वो रेल टिकट की बात हो या फिर प्रियंका गांधी द्वारा बसें चलवाने की बात हो, क्या ज्वाइंट अपोजिशन की तरफ से भी इस तरह का कोई प्रस्ताव विचार किया गया कि विपक्ष? आदरणीय मित्र, शायद आपकी आवाज टूट गई पर मुझे आपका सवाल समझ में आ गया। जयेंद्र जी, सबसे पहले मैं ये कहूं, 22 राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी विजडम में अपनी अपनी राय मशवरा कर और फिर एक सहमति से इस देश की जनता के लिए कोरोना महामारी से लड़ने और आर्थिक महासंकट से लड़ने के लिए 11 सकारात्मक सुझाव भारत सरकार केंद्रीय सरकार को दिए और ये 11 सुझाव आपके सामने हैं। जहां तक अलग अलग पार्टियों के द्वारा अलग अलग सेवा करने का प्रश्न है,
जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों के टिकट का पैसा और खर्चा न केवल हमारी प्रांतीय सरकारों ने, बल्कि जहां हम विपक्ष में हैं वहां हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इकाइयों ने दिया, या फिर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में 1000 बसें उपलब्ध करवाई, जो आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट जी की राजनीति की भेंट चढ़ गई। ये पार्टियों का अपना निर्णय है। आपने पहला सवाल ये पूछा था कि सपा बसपा को निमंत्रण दिया गया। मैंने मौसमी जी को भी बताया था कि निमंत्रण दिया। आना या नहीं आना ये व्यक्तिगत राजनीतिक दल का निर्णय है और इसका प्रश्न मेरी बजाय उनके मुखिया से पूछा जाना चाहिए। पर 22 राजनीतिक दल जो देश की लगभग 60 से 70% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने बड़े सकारात्मक तरीके से 11 देश की जनता की मांग आज केंद्रीय सरकार के समक्ष रखी हैं। उम्मीद है प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय सरकार इसको जल्द से जल्द इसका संज्ञान लेकर इस पर पॉजिटिव निर्णय लेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। सुनील प्रभु फ्रॉम एनडीटीवी। Yes, namaskar Sunil ji. Go ahead. Sir, namaste. I just wanted to, just because two things, Mr. Uddhav Thackeray, who was the first time participating in this conference, made a significant point about the politics being played by the BJP. And Mr. Rahul Gandhi making it clear that India has now become the only country in the world to have, after a lockdown, increase the number. And he fears that it will be increased further. Does this also get endorsed by the other in his intervention, both these period, and because your statement does not talk about communalizing relief? Sunil ji, there are many issues that are deliberated, discussed threadbare in a meeting that lasted for over 4.5 hours. I'm certain that every single small or big point cannot necessarily find mention in the statement per se. But the important issue is that the crux of everything that was deliberated, discussed, and a consensus arrived at is right here in the 11 demands that we have raised. Number two, not only Shri Uddhav Thackeray, but many other leaders, chief ministers, presidents of the parties raised positive viewpoints with regard to fighting the war against COVID, as also with regard to tackling the economic pandemic. And I gave an example to another colleague. Nearly 16,000 crore rupees of GST is due to the state of Maharashtra from Government of India. It is neither a grant nor a favor that central government has to give. But for some reason, union government is not releasing that money to people of Maharashtra and to Maharashtra government. Ultimately, who suffers? People of Maharashtra. I think it's time to rise above the parochial political partisanship on part of Government of India and to come forward to liberally give help, financial and otherwise, to the states, as also release 100% of all dues to the states. Thank you. Sir, we'll have to quickly wind up because जो हमारे print के friend हैं उनको जो है जल्दी report file करनी पड़ेगी. अच्छा, couple of questions still awaiting. प्रीति है सहारा से और आनंद है. Pranav, I just wanted a small query. This is Sanjeev here. Okay. Yeah, Randeep ji, namaskar. I just wanted to know you, since you talked about restoration of parliament and parliamentary scrutiny. So one thing is clear, that many of your members and chairmen of various committees have been asking for early holding of parliamentary committee meetings. But are the political parties also demanding an immediate session of parliament? I think whatever the consensus of the 22 political parties is there is as a part of our demand. And I'm sure that the press release statement would have been released or will be released shortly, and you will find it there. Yes, we need restoration of oversight by the parliament and parliamentary standing committees. The answer to your question is in the affirmative. Anandji, please come in. So the parliament session, you're also wanting a parliament session immediately to be convened. See, I think whatever needed to be said, Sanjeev ji, is already incorporated in the demands and it's there.
Okay. So kindly do peruse it, and I will be happy to answer any subsequent query thereafter. Anandji, please come in. Yes, my question is with regard to the statement which is you just read out. It says that the center has usurped the powers of the state governments. There were three chief ministers I can see in the list, non-Congress chief ministers. Was there a complaint raised by these chief ministers about a bias against the non-BJP ruled states while fighting COVID in terms of providing them financial packages or infrastructure? Was there any complaint? Anandji, the truth is, whether it's a non-BJP ruled state who have been many times discriminated against by the present union government, or even the BJP chief ministers who are too scared to speak up in the meeting of the chief ministers with the prime minister for fear of reprisal. The common thread that is there is that union government is withholding funds of GST as also the Finance Commission that union government should have rightfully transferred to the states, even in normal circumstances. And in times like COVID pandemic and the economic pandemic, it was imperative to transfer this amount without delay. Yet, for last almost 3 months, the GST dues have not been transferred. And I surprisingly read today that Government of India is thinking through GST Council to raise loans to pay for GST dues and the guarantees that have been statutorily given to the state. That should tell you about the discriminatory attitude being followed by union government vis-a-vis the states, more so vis-a-vis non-BJP ruled states. And in terms of infrastructure and other amenities, we have seen over last 60 to 80 days as to how they have been severely lacking on account of lack of planning, lack of direction, lack of administrative correlation, and multiple times confusion on administrative and in the mind of the political leadership. Thank you. Thank you, sir. Before I take the last question, sir, I have a question. Before Sandeep comes in, sir, I have a question. Maratha friends from Maratha media. Kamlesh ji asked ki Sharad Pawar, Praful Patel ji, Chief Minister Uddhav Thackeray, Rajya Sabha MP Sanjay Raut ji from Shiv Sena, what issues did they raise in opposition parties meeting today? And you can club the other question together with Ajay Buva from Sakal. He asked कि आज की मीटिंग में गरीबों को पैसा देने के लिए न्याय योजना राज्यों में लागू करे, इस तरह का प्रस्ताव कांग्रेस नेतृत्व ने अन्य राज्यों को और दलों के सामने रखा है क्या? और महाराष्ट्र गुजरात में कोरोना से सबसे ज्यादा मृत्यु हुए, तो कोरोना से निपटने में राज्यों की विफलता पर इस पर बात हुई क्या? Sir, if I may be permitted, Mr. Randeep Sunil Prabhu here, just one more point on Pawar Sahab praising the railway minister for what he has done. How does all parties look at it? Well, let me straight away say the meeting had the good fortune of getting the wisdom of the grassroots experience both of Shri Sharad Pawar as also Shri Uddhav Thackeray, along with their colleagues Shri Praful Patel and Shri Sanjay Raut. Everything that is deliberated and discussed in the meeting is not necessarily stated in every sentence. I think the statement captures the crux of everything that these four, as also other leaders present in the meeting, stated. And if you go through the statement, you will find that your query would have been answered. Number two, the states are being systematically discriminated against, including the state of Maharashtra. Among the largest GST dues pending from Government of India are to Government of Maharashtra, which I think is about 16,000 crore. This is not a grant to be given by the center to the state, but this is an extremely substantial amount to be paid.
Why is the amount not being paid? That's the simple question. Why is the amount due under the Finance Commission not being paid to Maharashtra and other states? And why is Government of India shying away from liberally giving both health and economic packages in terms of financial assistance to the states? Otherwise, who will fight this war against COVID-19 is the simple question. As a return of migrant labor, we have successively demanded, and we have again demanded, that instead of charging for Shramik trains, which are also deficient in number, Government of India must come out with a clear-cut policy of ensuring that the return of the migrant labor is free of any charge. That will be the only Raj Dharma to be followed. Thank you. Can we wind up now, please? Sandeep, sir, Samma here. I have one question, sir. You have also talked about the Nyaya Yojana. The Nyaya Yojana. The question on Nyaya Yojana. Randeep ji, the question on Nyaya Yojana. Samia ji, 1 minute, let me answer that. Sure, sir. आदरणीय मित्र, जहां तक न्याय योजना का प्रश्न है, अगर आप कांग्रेस का पिछला घोषणा पत्र लोकसभा का भी पढ़ें, तो न्याय योजना पूरे देश में लागू करने के लिए भारत सरकार को अपने बजटरी सपोर्ट में से पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप हमारी पहली मांग पढ़ें आज भी 22 राजनीतिक दलों की, जब हम कहते हैं कि 7500 रुपया प्रति परिवार 6 महीने के लिए दिया जाए, तो वो न्याय योजना ही है। कम से कम 6 महीने के लिए कोरोना की इस महामारी और आर्थिक संकट के काल में जो परिवार इनकम टैक्स पेई नहीं है, इस देश के उन सब परिवारों को 7500 रुपया प्रति माह दिया जाए, यही न्याय योजना है। धन्यवाद। सामिया, go ahead, please. Yes, sir. Sir, I just wanted to ask you, today also coincides with the day when Health Minister Dr. Harshvardhan has become the chairman of the WHO Executive Council. Most of the points that came out of the opposition party meeting is centered around the financial sector, about the financial package. So as far as the health sector is concerned, the 4 lockdowns that were carried out, following which we have seen how faulty PPE kits were distributed, faulty ventilators were being also came to the fore, and how there were tenders given to one Gujarat company to make the testing kits, and how there is not enough increase in testing as it ideally should be to fight coronavirus battle, sir. What has been the overall view of the 22 opposition party vis-a-vis building up the health infrastructure during these 4 lockdowns? There was a deep and serious concern expressed by almost every leader on the negligence that has happened in terms of dealing with the health pandemic of corona. And if you read demand number 4, which I want to take this opportunity to reiterate, and that says, provide accurate and relevant information on COVID-19 infections and goalposts vis-a-vis testing, infrastructure and containing spread. This itself is an indictment of the central government in failing on all these counts. Yes, there were concerns raised with regard to false and fake testing kits being purchased by ICMR. There were concerns expressed as to how Delhi High Court judgment exposed a possible case of corruption in purchase of rapid testing kits from China, and at almost double to triple the price. Yes, the way in which Gujarat government has had that so-called ventilator scam is open for everybody to adjudge and see. But these are important failures towards the goalposts of fighting corona. But there are many, many, many more failures on part of Government of India. And that's why we unequivocally have said that provide accurate and relevant information, both on infection and goalposts, both vis-a-vis testing, infrastructure and containing spread. We hope attaining highest post is always good for an Indian.
and we always welcome it. But at the end of the day, the fight against COVID-19 will be won unitedly and collectively, and not by singling out or by ignoring important health and economic parameters. Thank you. Can we wind up, Pranav? Thank you, sir. Sir, just two more questions. Sandeep Fukan from The Hindu. Yes, Sandeep. Yeah, Namaskar. Randeep, I just have one question. Your statement says that, in fact, it accuses the center of unabashedly usurping powers of state government. So did the chief ministers like Uddhav Thackeray and Mamata Banerjee reflect this? Sandeep ji, the concern as to how powers of the states have been usurped by the central government has been expressed by each and every one of the leaders present in the meeting. The chief ministers have steadfastly followed every order issued by the center, thinking that this is not time for political one-upmanship, but to fight the war against corona collectively and decisively and unitedly. But the important issue is, can you usurp powers of the federal democracy in garb thereof? Can you deny funds to the states in garb thereof? Can you intervene in the jurisdictions of the states as listed in the Constitution, the lists of the Constitution in garb thereof? Can the powers of COVID-19 be used as smoke screens to somehow dilute the powers of the states which are democratically elected governments? Can you use COVID-19 as an excuse to dilute civil liberties, as also arrest journalists and persecute journalists and other civil liberties persons? These were some of the questions that were in mind of the leaders, and that's why you see the line that you see there. Thank you. जी सर, प्रीति फ्रॉम सहारा, वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. प्रीति प्लीज कम इन फास्ट. सर नमस्कार. सर वैसे तो तमाम सवालों के जवाब दे चुके हैं आप. यूपी को लेकर के एक सवाल था. हमने बीते 5-6 दिनों में देखा बस की राजनीति को लेकर के जो कुछ हुआ, उसके बाद भी आज न तो समाजवादी पार्टी शामिल हुए न बसपा शामिल हुए. लाइक माइंडेड पार्टीज के जो लोग शामिल थे आज की मीटिंग में, इसमें क्या यूपी के मसले के ऊपर भी चर्चा हुई? जिस तरीके से कांग्रेस की पेशकश थी, उस पेशकश पर पूरी तरह से राजनीति होती रही सामने यूपी की सरकार से, और नतीजा ही ढाक के 3 पात निकला. मजदूरों की तो मदद नहीं हो पाई. ऐसे में दूसरे राज्यों के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, क्या वो फिर कोई मदद की पेशकश इस तरह से कर पाएंगे? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस की कोशिशों का नतीजा हम लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा, इस मुद्दे को लेकर के कोई चर्चा हुई? और इसमें समाजवादी पार्टी और क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी दोनों नहीं थे, इसका असर होता अगर वो लोग शामिल होते और उनके भी रिएक्शंस आते तो? पहले तो आपके सवाल के लिए आपको साधुवाद. अजय सिंह बिष्ट जी उर्फ आदित्यनाथ जी, उन्हें शर्मसार होना चाहिए. वो प्रदेश के चुने हुए मुखिया हैं. जिम्मेवारी अजय सिंह बिष्ट सरकार की है, जिम्मेवारी आदित्यनाथ सरकार की है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल का गरीब मजदूर परिवार सहित पांव में फफोले, परिवार में बच्चे को गोद में लिए, पूरा बोझ पीठ पर लिए, भूखे प्यासे जो पैदल चला जा रहा था, उसके लिए वस्तुओं का इंतजाम करते. जैसे वो राजनीतिक रैलियों में हजारों बसों का इंतजाम करते हैं, पर खुद इंतजाम नहीं किया. और कांग्रेस ने जब 1000 बसों की पेशकश की तो आप उसमें मीन मेख निकालने में लगे रहे. 4 दिन तक सैकड़ों बसें बॉर्डर पर इंतजार करती रही, पर हमारे मजदूर भाई बहनों को आदित्यनाथ जी उर्फ अजय सिंह बिष्ट जी की हठ धर्मिता ने उनके पांव के फफोलों के दर्द को वो समझ नहीं पाए. ऐसे मुख्यमंत्री को न केवल शर्मसार होना चाहिए, पर अंतर्मन में आत्मसात करके सोचना चाहिए कि क्या सत्ता अब उनके लिए भोग और विलास की वस्तु बन गई है? क्या सत्ता का अहंकार इतना हो गया है? क्या उसके आगे इतने काला चश्मा लग गया है कि उन्हें लाखों सड़क पर चलते हुए मजदूर की पीड़ा नजर नहीं आती?
उन्हें भूखे प्यासे व्यक्ति लाखों उत्तर प्रदेश और बिहार के नजर नहीं आते। और दो राजनीतिक दलों की आपने चर्चा की। हम सपा बसपा के नेतृत्व का आदर करते हैं, पर अगर वो इसमें आवाज नहीं मिला रहे तो ये प्रश्न बजाय मुझसे ये प्रश्न उनके प्रमुख या उनके अध्यक्षों से पूछा जाना चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूरों, बिहार के गरीब मजदूरों की आवाज में आवाज मिलाने से क्यों कतरा रहे। धन्यवाद। प्रणव जी, कैन वी वाइंड अप नाउ? जी सर, विल हैव टू वाइंड अप। सवाल अभी भी है पर इनको अगली बार लेंगे हम। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और थोड़ी देरी के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। नमस्कार। अच्छा रणदीप जी, एक सवाल नहीं है, बस ये जानकारी के लिए पूछना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस प्रेसिडेंट की एडिटर्स के साथ कोई मीटिंग है क्या इस बीच में, हाल फिलहाल में? रमन भाई, जब भी चर्चा होगी मैं अवश्य सूचित करूंगा, पर कांग्रेस अध्यक्ष जी की पहली प्राथमिकता हमारा बीट का परिवार, जिसमें रमन झा जी और दूसरे साथी शामिल हैं, वो उनकी पहली प्राथमिकता होता है। नमस्कार।